जय सद्गुरुदेव जय पच्चरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 18। यदा विनियतं चित्तमात्मन्ये वावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इति युज्यते तदा। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उसी काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृहा रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। ज्यों ज्यों शरीर की बाहरी क्रियाओं पर नियम और नियंत्रण की छाप बैठती जाती है, त्यों त्यों आंतरिक आनंद की वृद्धि होती चलती है और इस प्रकार योगाभ्यास की क्रियाएं न करने की अवस्था में भी सद्गुरु कृपा से आप योग का साधन होता चलता है। जिस प्रकार उद्योग के निमित्त से, परंतु वास्तव में ईश्वर कृपा एवं भाग्य के बल से सब प्रकार का वैभव आप घर में चला आता है, उसी प्रकार जो मनुष्य परिमित रूप से और संयम पूर्वक सब क्रियाओं का आचरण करता है, वह सहज में ही सद्गुरु कृपा से योगाभ्यास के मार्ग में लग जाता है और उसे आत्मसिद्धि के अनुभव की प्राप्ति होती है। इसलिए हे अर्जुन, जिस भाग्यशाली पुरुष से यह संयम वाला कर्म योग सध जाए, वह मोक्ष के सिंहासन पर सुशोभित हो जाता है। When the disciplined mind rests in the self alone, free from desire for objects, then is one said to be established in yoga. Wind creates storm in the sea. The wind of desire creates commotion in the mind. Desirelessness makes the mind constant and pure. Fixed in yoga is that mind which is impregnable against all desires. It rejoices exclusively in the self. Such a yuktaha is always conscious of his immortal, imperishable, and invincible nature. Yuktaha means united with the self, or harmonized or balanced. Without union with the self, neither harmony nor balance nor samadhi is possible. Om. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరమసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థు సాధకులకు గీతాభాష్యము అధ్యాయం 6 శ్లోకం 18. ఈ విధంగా యోగాభ్యాసంచే పూర్తిగా వశం కాబడిన చిత్తము ఎప్పుడు పరమాత్మయందే నిలిచి ఉంటుందో అప్పుడు సమస్త కోరికల నుండి విడివడిన పురుషుడు యోగయుక్తుడు అని చెప్పబడతాడు. ఎంతగా శారీరక బాహ్యక్రియలపై నియమ నియంత్రణ ప్రభావం పడుతూ ఉంటుందో అంతగా ఆంతరిక ఆనందం వృద్ధి జరుగుతూ ఉంటుంది. పతంజలి యోగ ప్రకారము యోగ సాధన క్రియలు అనుసరించకపోయినా సద్గురు కృప వల్ల సహజంగానే యోగ సాధన జరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా యోగ సాధన చేయడం వల్ల భగవానుని కృప మరియు సౌభాగ్య బలం వలన అన్ని విధమైన వైభవములు వాడంతటవే గృహానికి చేరిపోతూ ఉంటాయో, అదేవిధంగా ఏ మానవుడు పరిమితంగానో మరియు సంయమనంతోనూ సమస్త క్రియలు ఆచరిస్తాడో అతడు సహజంగానే సద్గురు కృపతో యోగాభ్యాస మార్గంలో లగ్నమవుతాడు. అతనికి ఆత్మసిద్ధి అనుభవం ప్రాప్తిస్తుంది. అందుచేత ఓ అర్జున, ఏ అదృష్టవంతుడి పురుషుంచే ఈ సంయమనం అనే కర్మయోగం సాధించబడునో అతడు మోక్ష సింహాసనంపై ఎంతో బాగుగా శోభిస్తాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. जय गुरुदेव जय पतशरणम. अशा प्रकारे जेव्हा योगाभ्यासाने परिपूर्ण नियंत्रणाखाली आणलेले मन परमात्म्यात सुस्थापित होते, त्याच वेळी सर्व इच्छापासून रहित व्यक्ती योगाने संपन्न म्हटले जाते. शरीराच्या बाह्यक्रिया शिस्त आणि नियंत्रणाखाली आल्याने आंतरिक आनंद वाढतो आणि अशा प्रकारे योग साधना पतंजली योग नसतानाही सद्गुरूंच्या कृपेने योग साधना आपोआप होते.
ज्या प्रकारे सर्व प्रकारची संपत्ती घरात आपोआप येते वरवर पाहता, परंतु प्रत्यक्ष देवाच्या कृपेने आणि भाग्याच्या सामर्थ्याने असे मर्यादित आणि संयमी पद्धतीने सर्व क्रिया करणाऱ्या व्यक्ती सद्गुरूंच्या कृपेने सहजपणे योग साधनेचा मार्ग स्वीकारतो आणि आत्मसाक्षात्काराचा अनुभव घेतो. म्हणून हे अर्जुना, जो भाग्यानं मनुष्य या शिस्तबद्ध कर्मयोग साध्य करतो तो मोक्षाच्या सिंहासनावर വിരാജമാൻ होतो. ജയ ഗുരുദേവ്, ജയ പദശരണം. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ഈ വിധത്തിൽ യോഗാഭ്യാസത്താൽ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമാക്കപ്പെട്ട മനസ്സ് പരമാത്മാവിൽ നന്നായി ലയിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായ വ്യക്തി യോഗസമ്പന്നനാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ശരീരത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അച്ചടക്കത്തിനും നിയന്ത്രണത്തിനും വിധേയമാകുമ്പോൾ ആന്തരിക സന്തോഷം വർദ്ധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ യോഗാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ പോലും സദ്ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയാൽ യോഗാഭ്യാസം യാന്ത്രികമായി സംഭവിക്കുന്നു. ഈശ്വരകൃപയാലും അനുഗ്രഹത്താലും എല്ലാത്തരം പുരോഗതിയും ഒരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വതവേ എത്തിച്ചേരും. എല്ലാ പ്രവർത്തികളും പരിമിതമായും സംയമനത്തോടെയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ സദ്ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയാൽ യോഗാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ അനുഭവം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ അർജുന, ഈ അച്ചടക്കമുള്ള കർമ്മയോഗം നേടുന്ന ഭാഗ്യവാൻ മോക്ഷത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ശോഭിതനാകുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, जय पदशरणम। एहि प्रकारे योगक अभ्यास सँ आत्मा के अधीन कयल गेल चित्त जाहि काल में परमात्मा में नीक सँ स्थित भऽ जाइत अछि, ओहि काल में संपूर्ण कामनाक इच्छा रहित पुरुष योग युक्त कहल जाइत अछि। जँ जँ शरीरक बाहरी क्रिया पर नियम आ नियंत्रणक छाप पड़ैत जाइत अछि, तँ तँ अंतर्मोनक दशा में आनंदक वृद्धि होइत जाइत अछि। आ एहि प्रकारे योगाभ्यासक क्रिया नहि करबाक अवस्था में सेहो सद्गुरु कृपा सँ आप रूपी योगक साधन होइत जाइत अछि। जाहि तरहें उद्योगक निमित्त सँ मुदा वास्तव में ईश्वर कृपा आ भागक बले सब तरहक वैभव आप रूपी घर में चलि आबैत अछि, ओहि तरहे जे मनुख नियमित रूप सँ आ संयम पूर्वक सब काजक आचरण करैत छथि, वएह सहजता सँ योगाभ्यास के बाट में लागि जाइत छथि आ हुनके आत्मसिद्धिक अनुभव प्राप्त होइत छनि। तैं हे अर्जुन, जाहि भाग्यशाली पुरुष सँ ई संयम वाला कर्मयोग साधि जाय, ओ मोक्ष के सिंहासन पर सुशोभित भऽ जाइत छथि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।